Hi guys, welcome to my channel. So today is not a vlog, it's just an interactive video. Not an interactive video per se because only I'll speak and you will listen, but still. So as most of you already know that I am from Kolkata in India and most of my educational degrees were from that place except my masters which I am currently pursuing from the University of Bristol. So for the last few weeks I am noticing that many people are messaging me in Instagram and on LinkedIn that what is the procedure of applying in a foreign university, what are the steps to follow, what exams to give. So this video is basically about everything you need to know before applying in a university, which university to choose, what are the steps to follow in order to get an admission call from your dream university, how to get good marks in your admission tests, and many other things. Since this is a very vast topic, I'm going to divide this video into three sections. The first is choosing your university and your subject. The second is the kind of exams you have to give. And the third is what are the documents that you might need and how to apply in a university. So I think the third part will be the longest. So bear with me throughout the video. Without any further ado, let's begin. So when you are planning on applying in a foreign university, you should get into the best college that you can get according to your potential. So how would you know that which college is good and which college is not? Listening to people and following word of mouth is not the way to go here. So you need to research first. And how to research? You need to go to a site called QS World Rankings, and there universities across the world are ranked according to 5 criteria. What are these criteria? Academic and employer reputation, faculty student ratio, citations per faculty, which is very important, that how many papers each faculty writes and how many people cite those in their essays. And the fifth one is international student and faculty ratio. So according to these 5 criteria, universities would be ranked and you have to properly check and apply in only those universities which have a good rank. Apart from QS World Ranking, you can also check Times Higher Education Ranking, which is also a trustworthy source. For example, while I was researching about universities, the University of Bristol, which I am currently in, had ranked about 61, 62 like that. Now, in the QS World Ranking 2024, it is in the 55th position, which is great. जब तुम यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि दे चूज़ अ पर्टिकुलर प्लेस कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे यूएस जाना है, ऐसा कोई प्लेस चूज़ करते हैं और उधर के आसपास यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे क्यूएस रैंकिंग में देखते हैं कि बेस्ट कॉलेज इन कनाडा, बेस्ट कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देखते हैं. पर मुझे लगता है एज ए पर्सनल ओपिनियन, डोंट लाइक चूज अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग. प्लेस तो तुम कहीं भी चले जा सकते हो, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट द यूनिवर्सिटी दैट यू आर चूजिंग वो कहीं भी हो, बट दैट शुड बी द बेस्ट. जैसे कि मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बोल रही हूँ, मुझे ये था कि मुझे यूके या फिर यूएस जाना था, मुझे कनाडा कभी नहीं जाना था एज ए पर्सनल ओपिनियन में. बट इन जनरल मुझे लगता है कि यूके का एजुकेशन स्टैंडर्ड इज हायर देन मोस्ट अदर कंट्रीज. बट व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटीज, यू शुड फर्स्ट कंसिडर द यूनिवर्सिटीज देन द प्लेस, नॉट द अदर वे राउंड. यूनिवर्सिटी का तो हो गया. अब आता है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें. अगर तुम एक बहुत ही डिटरमाइंड इंडिविजुअल हो एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, देन इट इज़ फाइन फॉर यू. बट suppose you have completed your undergrads but for your postgrads you don't know what you are going to study, then it is very important to think about it wisely. और तुम ऐसे suddenly diverse path नहीं choose कर सकते. For example, if for undergrads you have studied BTech in computer science engineering और तुमको suddenly ऐसे masters करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दोनों एकदम डिफरेंट है. तो ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मतलब हायर रेपुटेशन कॉलेजेस में, यू विल नॉट गेट द कोर्स बिकॉज तुम्हारा बैकग्राउंड एकदम अलग है. पर इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड तुमको मैकेनिकल लाइन में इंटरेस्ट है, तो तुम एक मिडिल ग्राउंड चूज करो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चूज रोबोटिक्स, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत अनरिलेटेड भी नहीं है. अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ. जैसे कि मुझे मार्केटिंग करना था, तो सिंस आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में एमएससी इन मार्केटिंग अप्लाई करने के लिए तुम्हारा कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. तो मैं एमएससी मार्केटिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाई. सो इंस्टेड व्हाट आई डिड वाज, मैंने एमएससी मैनेजमेंट मार्केटिंग में अप्लाई किया. क्योंकि जब मैनेजमेंट का टैग लग जाता है तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम अ साइंस और अ कॉमर्स बैकग्राउंड.
इट डजेंट मैटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। और जब तुम यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तुम ऐसे ओवरऑल रैंकिंग देख रहे हो, पर अगर यू नो द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी, तुमको ये भी देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट के फैकल्टीज कैसे है। और एक चीज़ बोल रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि इधर पास में एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड बोल के, जो यूवी बोलते हैं सब। वो यूनिवर्सिटी का रैंक 700 में आता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। बट इफ़ यू आर स्टडिंग लॉ इन दैट यूनिवर्सिटी इट इज़ वेरी गुड। बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हाउ गुड इट इज़। पर ऐसे तुमको सब्जेक्ट वाइज देखना है वेदर योर सब्जेक्ट इज टॉट वेल इन द यूनिवर्सिटी और नॉट। अब ये तो हो गया यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट्स के बारे में बात। अब हम आएंगे कि क्या एग्जाम्स यू शुड टेक एंड हाउ टू टेक। So for testing your English language level, there are two exams. One is IELTS and one is TOEFL. You can choose either depending upon the requirements of the specific university that you are applying. Generally, most of the universities दोनों के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, but still it is better to check once. और कोई कोई यूनिवर्सिटी में तुम्हारा 11-12 का इंग्लिश स्कोर ही सफिशियंट है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जाम नहीं देने पड़ते हैं। इफ़ तुम्हारे सारे स्कोर्स अच्छे हैं तो यू शुड चेक दैट बिफोर हैंड। सिंस मैंने आइल्स दिया था तो मुझे आइल्स के बारे में ज़्यादा पता है, सो आई विल नॉट स्पीक अबाउट टॉयफल, आई विल ओनली फोकस ऑन आइल्स। सो आइल्स इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और इसमें ना 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। जनरली लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक ही दिन में होता है और स्पीकिंग किसी और दिन होता है। इफ़ यू बुक योर एग्जाम्स फ्रॉम बिफोर लाइक अ मंथ और 2 बिफोर, देन तुमको मौका मिलेगा, यू कैन चूज़ योर स्पीकिंग डेट विच कैन बी इधर 3 days प्रायर टू द एग्जाम डेट और 3 days पोस्ट द एग्जाम डेट्स। मतलब इन 6 दिन के बीच में यू कैन चूज़ योर स्पीकिंग डेट, अगर अवेलेबिलिटी हुआ तो एनी डे। और अगर यू से बुक योर एग्जामिनेशंस 10-15 days अर्लियर विच आई डिड, यू कैनॉट चूज़ द स्पीकिंग डेट। वो लोग तुमको अलॉट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी। पर मैं अभी पहले लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में बात करूँगी। तो फर्स्ट सेक्शन इज़ लिसनिंग। तो लिसनिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस नरेट्स अ कॉन्वर्सेशन और अ स्टोरी, एंड इन द क्वेश्चन पेपर देर आर क्वेश्चंस। तो वो जैसा जैसा बोलेगी या बोलेगा यू हैव टू राइट द आंसर्स। और ऐसा कभी कभी होता है कि हमारा ध्यान कभी दूसरे जगह पे चला जाता है और हम लोग एक पर्टिकुलर आंसर सुन नहीं पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो आंसर के चक्कर में बाकी नेक्स्ट जो जो आंसर्स आता है वो सब छोड़ देते हैं। सो डोंट डू दैट। इफ़ यू मिस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वो छोड़ दो, क्योंकि देर आर नो ऑप्शंस टू पॉज द रिकॉर्डिंग और लिसन टू द रिकॉर्डिंग ट्वाइस। लिसनिंग में 4 पार्ट्स होते हैं, तो आफ्टर ईच पार्ट देर इज़ अ शॉर्ट पॉज। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉजेज वो नरेशन रुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि पूरे एग्जाम में लिसनिंग पार्ट इज़ द ईजिएस्ट। अगर घबरा ना जाओ तो यू कैन गेट ईजिली अबव 8। नेक्स्ट कम्स रीडिंग पार्ट। इट्स बेसिकली लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन। तो एक बड़ा सा टेक्स्ट तुमको दे देता है एंड देर आर क्वेश्चंस अंडरनीथ इट, और तुमको ऐसे सॉल्व करना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। मुझे प्रॉब्लम रीडिंग में इसलिए होता था क्योंकि सेम क्वेश्चन का सपोज डिफरेंट आंसर हम लोग ऐसे कर सकते थे, बट देर इज़ ऑब्वियसली वन करेक्ट आंसर, तो वो समझने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। बट आई डोंट नो हाउ, बट मुझे रीडिंग में 8.5 आ गया था। अब राइटिंग में होता है 2 टास्क। देर इज़ टास्क 1 एंड देर इज़ टास्क 2। टास्क 1 में क्या होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल, डायग्राम, मैप और लाइन ग्राफ, ये 6 चीज़ों में कुछ भी दे सकता है ऐसे पेपर में, और तुमको उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। उसका एक पैटर्न है, जो पैटर्न तुमको पहले सीखना पड़ेगा। मैं जैसे यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करती थी, तो आई वुड प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड चेक दैट, बट इट वॉज फेयरली ईजी। एंड टास्क 2 में एक ऐसे लिखना होता है, कोई भी टॉपिक दे देता है और विद इन 250 वर्ड्स उसको लिखना होता है विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब ये 3 सेक्शन में, जैसे कि मैंने बोला, मुझे रीडिंग में सबसे ज़्यादा डर था, पर सरप्राइजिंगली राइटिंग में मुझे सबसे कम आया, ओनली 6.5। मे बी आई कुड हैव रिटन बेटर, पर टास्क 1 में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया टास्क 2 से। डोंट डू दैट। ऑलवेज टास्क 2 अच्छे से लिखो और टास्क 1 को उतना टाइम मत दो, बिकॉज टास्क 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। राइटिंग में बेसिकली तुमको वोकेबुलरी, ग्रामर और कोहेरेंस पे मार्क्स मिलेगा। तो ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? मैं इधर जिन दोस्तों से मिलती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ये लोग कोचिंग लिए हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। सब कुछ, एवरी मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आई विल लिंक एवरी चैनल दैट आई फॉलोड इन माई डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू देम, दे आर सो गुड। और ऐसे बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब में देखा है कि बोलते हैं 7 दिन में प्रिपेयर कर लिया, 8 आ गया, 15 दिन में प्रिपेयर कर लिया, 7.5 आ गया। ये सब सच नहीं है। सबका अलग अलग प्रिपरेशन टाइम होता है।
तो तुम अपने पोटेंशियल को समझो और तुम देखो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे माना जाता है कि 3 मंथ्स इज़ द बेस्ट पीरियड टू प्रिपेयर फॉर आयल्स, बट 3 मंथ्स इज़ ह्यूज। इतना करके तुम बेकार अपना वक्त बर्बाद ही कर रहे हो। मैं बोलूँगी कि जिस दिन से सोच रहे हो कि आयल्स दोगे, उसके ठीक 1 महीने बाद का डेट लो। तुमको अगर एक डेडलाइन रहेगा कि इस दिन मेरा आयल्स है, तो यू विल प्रिपेयर मोर एफिशिएंटली। 1 महीना इज़ मोर देन इनफ। मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, दो मैंने खुद 10-15 दिन पहले ही बुक किया, बट मैं हूँ, डोंट डू लाइक दैट। बुक योर टेस्ट डेट 1 मंथ बिफोर सो दैट यू कैन गेट एम्पल टाइम टू प्रिपेयर और तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा हो। और वेन यू बुक द एग्जाम डेट, दे सेंड यू मटेरियल्स एज इन कैम्ब्रिज बुक्स, और वो बुक्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं जब प्रैक्टिस करती थी तब रीडिंग्स बहुत टफ आते थे और मैं बहुत नर्वस हो जाती थी क्योंकि मेरे को मार्क्स ही नहीं आते थे। पर जब मैंने वो कैम्ब्रिज बुक से प्रैक्टिस किया, मैंने देखा कि उसका लेवल कंपैरेटिवली ईजियर है और वैसा ही लेवल आईएलटीएस में आता है। सो वंस यू आर डन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज, डू प्रैक्टिस फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक्स। अब जब मैं स्पीकिंग के लिए गई थी तब पहले तो मेरा पासपोर्ट मांगा और टेस्ट बुकिंग का रिसीट मांगा। फिर आई वॉज आस्क टू वेट विथ मैनी अदर स्टूडेंट्स। मुझे एक रूम में बुलाया गया जहाँ पे इन्विजिलेटर थे और उन्होंने मेरे से नॉर्मली बात करना स्टार्ट किया। दो वो टाइमर स्टार्ट करते हैं, पर बेसिकली दे डोंट आस्क यू क्वेश्चन, दे जस्ट कन्वर्स विथ यू। लाइक अगर तुम इधर होते तो क्या करते। वो जस्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं। पहले तुमको अपने बारे में कुछ बताना होगा, फिर वो जो पूछेंगे यू हैव टू कन्वर्स कैजुअली, पर ज़्यादा कैजुअल भी मत हो जाना। दे वॉन्ट टू सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना इज़ वेरी एसेंशियल। अब कुछ देर कॉन्वर्सेशन के बाद दे विल गिव यू अ टॉपिक, और टॉपिक देके वो कुछ टाइम तुमको ब्रेक देंगे टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, और 2 मिनट तक तुमको उस टॉपिक पे बोलना है। इस पार्ट पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि 2 मिनट तक क्या बोले, पर इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक नेचुरली तुम जो फील करते हो कुछ चीज़ के बारे में, यू जस्ट हैव टू से। ऐसा नहीं कि ऐसे के जैसे कुछ हाई-फाई लैंग्वेज में तुमको बोलना है, नहीं, वेरी बेसिक लैंग्वेज में तुमको बस बोलना है। मेरा जो इन्विजिलेटर था उसका ब्रिटिश एक्सेंट था, तो मैं तो पहले ही बहुत इंटिमिडेटेड हो गई, पर थैंक गॉड उस इंटिमिडेशन की वजह से कोई असर नहीं पड़ा मेरे आंसर्स पर। ऐसे इंटरनेट पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट है, पर उसके बाहर भी कुछ आ सकता है और उसके अंदर से भी कुछ आ सकता है। सो इट्स बेटर कि तुम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर ना कर जाओ, तुमको बस इंग्लिश नेचुरली बोलना आना चाहिए। जैसे कि मेरे में टॉपिक आया था कि व्हाट डू यू थिंक, हैविंग एनालिटिकल ब्रेन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैंने तो बोला था कि फोटोग्राफिक मेमोरी से ऑब्वियसली बहुत एडवांटेजेस है कि सब कुछ याद रहेगा, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव एनालिटिकल brain, because then you can solve a problem on your own. You don't need to focus on the information that is already inserted in your brain. और फोटोग्राफिक मेमोरी होने से तुम कुछ चीज़ जो तुम भूलना चाहोगे वो भूल नहीं पाओगे, सो वो तुमको बाद में पेन देगा। तो ये आंसर सुन के उनको बहुत अच्छा लगा था, तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड ओके गुड। फिर लास्ट में थोड़ा वही सब बात कि क्या पढ़ना चाहते हो, व्हाई आर यू गिविंग आईएलटीएस, ये सब नॉर्मल कन्वर्सेशन करके इट एंड्स। तो आईएलटीएस तुम 2 वे में दे सकते हो, एक तो तुम पेन पेपर मोड में दे सकते हो और दूसरा तुम कंप्यूटर मोड में दे सकते हो। दोनों के लिए ही यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर सेंटर जहाँ भी तुम्हारा सीट पड़ेगा और यू हैव टू गिव। फॉर मी पर्सनली आई थिंक दैट pen paper would be easier, because anything can go wrong in an electronic gadget, but if you are comfortable then you can obviously go for it. मैंने पेन एंड पेपर टेस्ट दिया था ऑब्वियसली और मुझे ओवरऑल 8 आया था। अब अगर कंप्यूटर टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स 2 से 5 दिन के बीच में आ सकता है, और अगर पेन पेपर टेस्ट दे रहे हो तो इट टेक्स लॉन्गर, इट टेक्स अबाउट 13 days. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ, ईजी। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि what all documents you would need to apply. So first of all, you would need your birth certificate, your 10th, 12th mark sheet, your bachelor's mark sheet semester wise, then your degree certificate. If you have already done your master's, then your master's certificate as well. If any dependable is coming with you, then you would need their details. You would need your resume, and if at any point of time you had undergone a name change, then you would need an affidavit as well. And lastly, the most important things that you would need are your SOP, the statement of purpose, and the LOR. SOP is basically a document where you have to write why you want to go in the particular university to study, and you have to customize that according to each university. Like you cannot just write one essay and then apply to all the universities with the same SOP. And if you want to read my SOP, then message me on Instagram and I'll send it to you. The next is the LOR, letter of recommendation.
You need two LORs from any two professors in your college that you studied under. So, this is basically fairly easy to get because you just mail your professors and they are more than happy to help you. At least in my case, they were. Sometimes your professors would write the LOR themselves, and sometimes they would ask you to write the LOR for yourself and they would just sign it at the bottom. So, if you want to see my LOR, then also you can message me. And as you know, passport is mandatory. So, when all of these documents are ready, you need to go to each university's website and apply there. But my recommendation would be contact any educational consultant because they know what to do and they will apply in your dream universities for you and you will be tension free for some days. Most importantly, they don't charge you for anything. Like, I know that there are some consultancies that ask for money, but don't go for those. Go for IDP, Envision, etc. When you get admitted to a particular college, the consultancies get commission from those universities. So, I have seen many consultancies would try to manipulate you into choosing universities that they would get highest commission from. So, don't get manipulated by them. I would say don't listen to them. Do your own research and then go to them and ask them, no, these are the universities that I would like to apply. And they will guide you after that. So, after the application is done, you need to wait for your offer letter, and then after many days, your cash letter will come. So, when you get the offer, you need to provide them your bank details that has a certain amount of money that would be sufficient for your entire stay abroad. Now, what amount of money you are required to show in your bank account that depends from universities to university. So, you need to check their sites. और जब यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, मैं बोलूँगी कि लोग ऐसे करते हैं कि 10-12 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर देते हैं. डोंट डू दैट. द आइडियल प्रोसेस इज choose any 5 universities. Among these 5 universities, 2 should be your dream university. The other 2 should be good universities but not as good as your dream universities. And the last one should be a backup option so that if you by any chance don't get into all those 4 universities, you still have an option of getting into the 5th one. पर मैंने ना ऐसे 6 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई किया था क्योंकि मैं थोड़ा डरी हुई थी. तो आई अप्लाइड इन बर्मिंघम, ब्रिस्टल, यॉर्क, न्यूकैसल, शेफील्ड एंड कार्डिफ. हाउएवर मेरा ये था कि अगर बर्मिंघम और ब्रिस्टल में से मेरा नहीं हुआ तो आई वोंट स्टडी इन द अदर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज दे आर नॉट एज गुड. और ब्रिस्टल का ऑफर लेटर आने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा था. तो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड एज व्हाट टू डू. एनीवे, आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स टुडे. आज का वीडियो मैंने थोड़ा जनरलाइज बना लिया कि सब एक साथ बता दिया. बट इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. And if you need any further help, message me on Instagram. I'd be more than happy to help. And this is all for this video. Until next time, bye bye.